Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, children. Good morning. Can we have the cameras open? Good morning, Swali. So finally, you both have patched up, huh? Swali and Malay. Good morning, ma'am. Good morning, Good Shelly. morning, ma'am. Good morning. The cameras on करेंगे, please. All of you. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Agrim. Ma'am. Yes. You are in school? Yes, I am in school, and soon you all will also come to school. No online classes then. From first? We'll inform you, beta. Most probably from 6th or 7th, you'll be having your offline classes. And what about half-yearly examination? Beta, your half-yearly exams you will be having in mid of September. Again offline, no online exams now. Ma'am, syllabus? Syllabus, whatever we have done till now, that is syllabus. And ma'am, pattern test में age of industrialization will come, ma'am. Yes, Dhananjay, any problems? Beta, I didn't get you. क्या कह रहे हो बेटा आप लोग? मैम सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव? बेटा दोनों चीजें होंगी, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव जी। OMR sheet की तरह we also have to नहीं want to come ये to school. बेटा OMR शीट वाला प्रैक्टिस, OMR शीट वाला जो चीज है वो चीज अलग है, वो आप लोगों को बाद में कराएंगे। हाफ इयरलीज आपके नॉर्मल जैसे होते थे वैसे ही होंगे हाफ इयरलीज, ठीक है बेटा? राइट? Okay, ma'am. प्रियांशु, फैज, श्रेया। अच्छा धनंजय आप रिजॉइन कर लो बेटा, इफ दैट इज द केस। प्लीज ओपन योर कैमरास ऑल ऑफ यू। Okay. See, this week many of you were not regular. Why is it so, Chirag? Ma'am, your video is very much lagging, ma'am. I know, beta. I am in school, no? That is why it is lagging. Ma'am, may I rejoin? Your voice is also not coming. नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है यहाँ पे स्कूल में. It is fine. You be here. Okay, fine. Tell me what we were doing, class. Worksheet. We are doing, ma'am. Worksheet. We are doing, ma'am. 15 questions. Okay, flowcharts are all over. Yes, ma'am. Yes, Which worksheet we were doing for of manufacturing industries? Yes, ma'am. For chapter 6. Yes, ma'am. Okay, how many questions we did? 15. Ma'am, 15. Ma'am, 15. 15. Can you tell any one of the question that was there? Mehak Khandelwal, sorry, Mehak Yadav. Priyanshu? Ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can I turn off my camera for just a second? कर लो, Thank you, ma'am. Yes, Ma'am, Priyanshu. you can turn off your camera so that your voice can come, ma'am, fluently. Okay. Now is it Yes, fine? Ma'am, Yes. your voice. Yes, ma'am. Now voice is. Yes, ma'am. Right. बेटा वो हमने म्यूट नहीं करा है बच्चे, हम म्यूट काय बात के लिए करेंगे? हमें तो बच्चों की आवाज सुनना अच्छा लगता है भाई। जब हम म्यूट ही कर देंगे तो इंटरेक्शन बचेगा ही नहीं क्लास में बिल्कुल भी, है कि नहीं? अब भैया आप ही के साथ कोई दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, चलिए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल। Ma'am, we will do worksheet. हम ऐसा करते हैं ना बेटा, वर्कशीट रहने देते हैं, हम लोग आज ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं, राइट?
Right? वाटर रिसोर्स में करें वो यूनिट Yes, टेस्ट ma'am. में Okay, ma'am. For water resource, we have to do only maps or only. Only the map part. for Only the term map one. part we will do. Okay, ma'am. Nothing else. मैम अब मैं उसमें कहा मैम थियोरेटिकल में यूनिट में आएगा मैम, तो यूनिट से आप मैम रिमूव कर दिए। यूटी में थियोरेटिकल हम देंगे ना आपको, तो हम नहीं देंगे आपको। Yes, हमने नहीं, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम वो चैप्टर भी पढ़ेंगे बेटा। इज इट क्लियर? ओके ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. Fine. Yes, So ma'am. I want you all to open your books. Geography, last chapter, lifelines of a national economy. ठीक है? Let me also open my book. Okay, tell me what do you understand? Yes, beta. Nothing, ma'am. Continue. Tell me what do you understand by the term lifelines? Ma'am, by which and life. लाइफलाइंस As में मींस mentioned. which supports the life Ma'am. of people। Yes, very good, Devansh. Very good. Okay. When we say lifelines, we are actually talking about the support system, right? We are Yes, talking ma'am. about the support system, Yes, ma'am. right? I'm just sharing the board with you all. चलिए, ओके, ये हमने ठीक है बेटा। जब हम लाइफलाइंस कहते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दी सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये सपोर्ट सिस्टम हमारे कंट्री का सपोर्ट सिस्टम अगर हम कहते हैं तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है, दे आर कंसिडर्ड एज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप ये चीज देखो कि कोई भी कंट्री अगर है, उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो वो कंट्री ग्रो भी नहीं कर पाती है। Am I right? Yes, ma'am. Ma'am. Now, Yes, ma'am. why a country cannot grow without a proper transportation and the communication system? Aksada? Ma'am, because if there is, मैम बिकॉज I can say Yes, if Malay, there is Malay no, बताओ। ma'am, हाँ, हाँ, ma'am, बोलो। if there is a no way of transportation and communication, so ma'am, how could countries connect and contact each other in support of material and all goods for there? Exactly. See, in the previous chapter that we have read about the manufacturing industries, and we have also seen that all the different manufacturing industries are located at different places, and the raw material is also, transported from one place to another place. Now, if the transportation system is not good, if the communication system is not good, what will happen? People will not be able to contact each other. They will not come to know what the demand of a particular, manufacturing sector is. And if the transportation is not proper, they will not be able to transport the raw material as well, right? If there is no communication, people will not come to know about what each of them require. And if there is no transportation, they will not be able to carry or, take goods from one place to another.
So the support system of a country's economy is the transportation and the communication. And when these two are not proper in a country, the country will not be growing. The economy will not be growing. I hope this is clear. Yes, ma'am. Okay. Do we have Yes, Om ma'am. Sharma in the class? Om Sharma, are you there? बेटा एक मिनट रुको. Okay. Now see, when we talk of the transportation, what exactly we are concerned about in transportation? Class? I'm carrying goods from one place to another. No. How do you carry goods from one place to another? What are the modes that are adopted for the same? Ma'am, Ma'am, roadways, roadways, railways, Ma'am, landways, landways, airways, waterways. Right. pipelines. Right. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Yes, Dhananjay, now the issues are resolved, no? Yes, ma'am. Ma'am, I installed this again. Chalo, theek hai, very good. Fine. Now see, when we talk of the transportation or when we talk of the communication, see, let us confine to transportation first, okay? Now, when we talk of the means of transport. Ma'am, we are not audible. Means of transport. Now, when we talk of these means of transport, we categorize these means of transport into various categories. अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में, मुझे लगता है शायद क्लास 3 से हमने ये पढ़ना शुरू करा था कि जो means of transport है उनको हम categorize करते हैं into 3 categories, right? This is what we have read, right? So when we have to categorize means of transport into various categories, we will categorize them into Water, land, and air. yes, we will categorize them into land, water, and air. Air. Right? airways. Right? Very good. Now see, land transport is further divided into various categories. We have the roadways. Railways and Yes. We have the railways and the pipelines. pipeline. Very good. We have the Pipelines. pipelines. See these roadways, railways, these are age-old, transportation systems. But pipelines, they have been developed in the recent past. And since the development of these pipelines as a mode of transportation, it has become very easy for transporting the liquid goods, right? Right? And moreover, Yes, ma'am. the iron ore that we have, we generally transport it through the pipelines in the form of slurry. Slurry जानते हैं क्या होता है? No, ma'am. आयरन को जब एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको स्लरी बुलाया जाता है, ठीक है? तो जब आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करना होता है टू डिफरेंट प्लेसेस, पाइपलाइंस की हेल्प से इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी. सॉलिड फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो पाता है ना, तो पाइपलाइंस के थ्रू वो स्लरी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू दी पाइपलाइन. एलपीजी भी होता है मैम पाइपलाइन में. हाँ, एलपीजी भी होता है, एलपीजी भी होता है. अब तो देखो आपका वो आ गया है, CUGL आ गया है, आया है कि नहीं आया है? Yes. आया है ना? बरेली में. हाँ, तो ये CUGL है. जी बेटा. May I turn off my camera? It is disconnecting again and again. Okay, you can. Om, are you there in the class? Om Sharma, are you मैम there? पाइपलाइंस तो हम लोग
हाँ बोलो देवांश, बोलो बेटा। मैम पाइपलाइंस में वाटर ट्रांसपोर्ट में भी तो यूज कर सकते हैं मैम, वाटर के लिए भी होता है मैम पाइपलाइंस से। नहीं, अभी अभी हम पहले केवल लैंड ट्रांसपोर्ट पे वी आर गोइंग टू फोकस, राइट? तो अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट, हाँ जी बेटा, pipelines are used all into sewage water. क्या चीज पाइपलाइंस क्या कह रहे हो आप ध्रुव? मैम सीवेज वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाँ from बिल्कुल cities बिल्कुल। to पाइपलाइंस का जो यूज है बेटा, जितना भी जो भी लिक्विड फॉर्म है ऑफ एनीथिंग दैट वी नीड टू बी दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें पाइपलाइंस को हम यूज करते हैं, है ना? आप आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पाइपलाइंस जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज द मॉडर्न वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड इवन लिक्विड्स, स्पेशली वो कौन से गुड्स जो कि लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इजीली। आप देखो बाहर की कंट्री से ये जो पेट्रोल पंप्स आपने देखे, पेट्रोल पंप्स, Yes, ma'am. यस मैम। वहां पे Yes, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो वहां पे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं जिनके थ्रू जो है पेट्रोल, डीजल, Yes, ma'am. ये जो Yes, और ma'am. सीएनजी ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, Yes, ma'am. राइट? Yes. हाँ, तो पाइपलाइंस ये हम कह सकते हैं कि दीज आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन which have been developed in recent past, और इसका बहुत बहुत महत्व है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओम शर्मा, कैन यू हियर मी? बेटा क्या आप लोग को ओम शर्मा दिख रहे हैं मीटिंग में? Ma'am, it is showing Yes, he is in ma'am. meeting, but he is not speaking. yes ma'am, he is in the meeting. Yes, ma'am. ओम, कैन यू हियर मी? ओम, कैन यू हियर मी? मैम है नहीं, गया लग रहा है। नहीं नहीं, मीटिंग में ही है ये। yes ma'am, ओम शर्मा, yes ma'am, बेटा you know that your attendance is very important, yes ma'am, but you don't attend the classes regularly. Are you attending your classes regularly? मैं एक्चुअली मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं इसलिए लेट ज्वाइन की। बेटा लेट ज्वाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग टू द क्लासेस रेगुलरली, माय कंसर्न इज दैट। रीजन कोई भी हो आपको मुझे बताना पड़ेगा ये सब चीजें, बिकॉज आई एम योर क्लास टीचर, यू नो दिस वेरी वेल। yes ma'am, And most of the times I have seen that you come to the class but you don't speak, and after 5 minutes you exit the meeting. This is not going to work, please. okay ma'am, Kanji, try to be regular to the classes. Chaliye, these 3 points are clear: roadways, railways, pipelines. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, when ma'am. we talk Excuse of me, the, ma'am. Yes, ma'am. yes beta, Ma'am, these optical wires to transfer data are come under. नहीं, I am you are not audible, जोर से बोलो, मुझे क्लियर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने बेटा। Ma'am, these optical wires come under which category? ऑप्टिकल वायर्स ही तो इलेक्ट्रॉनिक उसका हो जाता है ना, दीज आर नॉट पाइपलाइंस बेटा, राइट? Ma'am, but they come in the means of transport. They are transporting data between अच्छा अच्छा each अच्छा, other. नहीं वो चीज अलग हो जाता है बेटा, उस चीज को इसमें हम नहीं डाल सकते, ये कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है? दिस कम्स इन द कम्युनिकेशन Okay. पार्ट, राइट? राइट? Yes, ma'am. चलिए, now when we talk of the water, we all know that waterways Not the cheapest way of transport, ma'am. they are the cheapest and oldest also, right? They are oldest also, right? Since ancient time we have been using these waterways for the transportation part. Now talking about the air, we all know that airways, these are those mode of transportation which are very beneficial in those areas where roadways and railways, the waterways are not very efficient, right? Yes, ma'am. Right, yes? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now discussing about the
मैम इसमें इनलैंड का क्या मीनिंग है मैम? INLAND वाटर में लिखा है मैम सेम इनलैंड। डाउट। बेटा पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, हम इनलैंड पे भी आएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, पर पहले हम लोग रोडवेज को करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोडवेज की, आप देखो ये जो लैंड रूट जो है, इससे जो ट्रैवलिंग है, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत पुराना है, सिंस एजेस। मतलब आप ये समझ लो कि एंशिएंट टाइम में भी जब लोग मूव करते थे, जब मूवमेंट होती थी, दैट यूज्ड टू बी फ्रॉम दी पासेस। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हिमालयाज में जो पासेस होते थे उनके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत पुराना है हमारे कंट्री में, लैंड कम्यूटिंग जो है बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये रोडवेज जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट, ठीक है। एक तो ये ओल्डेस्ट, ठीक है। दूसरा ये जो रोडवेज हैं आपके, इनमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर हम वाटरवेज या एयरवेज की कंपैरिजन में करते हैं तो इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इनको बनाने की, तो हम रोडवेज जो है हम कहीं पे भी बना सकते हैं। आप देखो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे रोड्स ना बनाई गई है ना। कोशिश यही है कि एवरी प्लेस एवरीवेयर दीज रोड्स आर मेड, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आप ये देखो कि जो रोडवेज हैं उसमें हम ये, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको डोर टू डोर सर्विसेज देती है ना, डोर टू डोर सर्विसेज देती है। आप स्कूल जाते हो, Yes, ma'am. जब आप स्कूल आते थे तो आप वैन्स वगैरह में आते थे, घर के सामने वैन आके खड़ी होती थी, है ना। तो रोडवेज जो है वो आपको डोर टू डोर सर्विसेज देता है, वेयर एज वाटरवेज और एयरवेज जो है या रेलवेज जो है, अगर आप कंपेयर करते हो तो इनके लिए आपको जाना पड़ता है, राइट? Yes, ma'am. है ना, Yes, ma'am. ठीक है। चलिए दूसरी चीज, अगर हम रोडवेज की बात करते हैं तो ये जो रोडवेज हैं ये एक्ट करते हैं एज अ फीडर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे एक्ट एज feeder to the other means of ट्रांसपोर्ट। अब कैसे, जो भी अलग अलग आप देखो कि रोडवेज are also transported by the roadways of the ships and airplanes. यस आप ये देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है आपकी, बहुत सारी चीजें तो रोडवेज के थ्रू ही जो है उनमें ट्रांसपोर्ट होती है, राइट क्लास? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब दूसरा, जब हम रोडवेज की बात करते हैं, यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम आता है ना? ठीक है Yes, ma'am. ठीक है धनंजय, ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट कम क्यों आता है? देखो अगर आपको रेलवेज के थ्रू कोई सामान लेके जाना है, पहले आप घर से गाड़ी करोगे, उसमें आप सामान डालोगे, फिर रेलवेज पे लेके जाओगे, वहां पे सब एक प्रॉपर, अगर एयरवेज और रेलवेज की हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स ही आप ले जा सकते हो। रोडवेज में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप एक गाड़ी में जितना सामान ले जा सकते हो। आप 10 गाड़ी कर लो, 10 गाड़ी में अलग अलग चीजें रख दो, अलग अलग वेट उसकी रख दो, ठीक है। तो कैपेसिटी हर गाड़ी की अलग अलग होती है, तो वो मैक्सिमम सामान लेके जा सकती है, पर रेलवेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ना ही आप एयरवेज में ऐसा कर सकते हो, राइट? Yes, ma'am. राइट, Yes, ma'am. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर हम रोडवेज की बात करते हैं, दे आर वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, राइट? Yes, ma'am. अब ये इकोनॉमिकल क्यों है? अगर आपको बहुत कम दूरी के लिए जाना है तो आप रोडवेज ले सकते हो, आप रेलवे करके थोड़ी जाओगे, आप ट्रेन में बैठ के थोड़ी जाओगे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई छोटे डिस्टेंसेस जब कवर करने होते हैं तो दे आर क्वाइट इजी थ्रू दी रोड्स, राइट? मैम हाँ जी
मैम जिस सिटीज में ट्रैम होती है तो मैम उसमें रोडवेज ज्यादा मैम चीप है या फिर ट्रैम? डिपेंड करता है कि ट्रैम की कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही है तो फिर तो कोई फायदा, उस एरिया के लोगों को फायदा है ना उसमें, राइट? ओके मैम। ठीक है, अब हम जब रोड्स की बात करते हैं तो रोड जो है वो मेटल्ड भी होती हैं और वो अनमेटल्ड भी होती हैं। आपको पता है मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स क्या होते हैं? मैम कच्चा एंड पक्का रोड। यस, और कौन सा, अगर हम इंग्लिश में आपसे पूछे विच आर कच्चा रोड्स एंड विच आर पक्का रोड्स, तो क्या बताओगे आप? मैम कच्चा the normal like and मैम which are made And from the ma'am, मैम पक्का the metal. stones मैम जो मैम stones कच्चा को- नॉन मेटल एंड मैम मेटल। जो मेटल रोड्स होती है वो आपकी पक्की सड़क कहलाती है। पक्की। मेटल मतलब ये नहीं कि लोहा लंगड़ लगा है उसके अंदर, आपकी जो प्रॉपर जिसमें कंक्रीट और वो सब डाल के चारकोल वगैरह से जो बनाई जाती है रोड्स, आपने देखी होंगी कैसी होती हैं, तो दैट इज अ मेटल्ड रोड। मतलब उसमें सारी चीजें लगाई गई है, उसको पक्का बनाया गया है जिससे कि मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो। और अनमेटल्ड रोड्स वो होती है जो कि कच्ची सड़कें होती है, जहाँ पे अनइवन टेराइन्स Rural होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मट्टी ज्यादा होती है और कुछ भी जैसे पक्का सा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और आपने देखा होगा मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड जो है उनमें बहुत वेरिएशन होता है। मेटल रोड्स आर वेरी इजी, communication is very easy through the metal roads, right? Yes, ma'am. cost will be Yes. the high Yes, ma'am. which cost will be high in unmetaled में road। मैम फ्यूल की ज्यादा खपत होगी मैम अनमेटल रोड में ट्रांसपोर्ट करने। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो देवांश? मैं ये कह रहा हूँ मैम हमें मैम अनमेटल रोड से मैम मतलब कच्चा रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं मैम, तो हमें महंगा पड़ेगा मैम बिकॉज फ्यूल की हाँ। ज्यादा खपत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग अनमेटल रोड से जब ट्रेवल करते हैं या कच्चे रोड्स पे जब हम ट्रेवल करते हैं तो वहां पे फ्यूल का जो यूज है वो ज्यादा होगा, प्लस वो स्मूथ भी नहीं होगा और आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, ठीक है। एक तो सामान गिरने, हमारा गुड भी और मैम हाँ, हमारा सामान भी गाड़ी- बिगड़ सकता है। बिल्कुल गाड़ी डैमेज होने का खतरा रहता है पूरा का पूरा। भाई कहाँ पे कब टायर पंचर हो जाए पता ही नहीं चलेगा, पता चले नया टायर है उसमें जो है 10 जगह छेद हो गए, कांटा घुस गया, कांच घुस गया, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स जो हैं, अगर आप देखो हमारे कंट्री में जो सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है रोडवेज का, रोड का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री में हर तरीके की सड़क पाई जाती है, वेदर इट इज मेटल्ड और इट इज अनमेटल्ड, ठीक है। अगर आप देखो तो जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, हाईवेज आपने देखे हैं, एक्सप्रेसवेज आपने देखे हैं, है ना। ग्रामीण सड़कें जो है, जो आपकी जो बहुत सारे जो हिल एरियाज हैं या रिमोट एरियाज हैं इन द विलेजेस, वहां पे जो है गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना एक लॉन्च करी थी, उसके तहत अंडर दैट पर्टिकुलर स्कीम बहुत सारे गांवों को शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है। विलेजेस are being connected to the cities. Yes, ma'am. So By the that, you know, cemented roads of 2 And- feet only. Ma'am, I Yes. have traveled that. Yes. Even when I went to Champavat, when I went to Champavat, there many places these boards were there, placards were put that this road is under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. It has been constructed under that particular program, and such difficult areas were connected to the cities so that people can smoothly travel from one place to another. And moreover, these metal roads are required so that the economy of a particular place can grow. जब मूवमेंट नहीं होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो इकोनॉमी पे भी तो उसका गलत असर पड़ेगा ना, किसी भी एरिया के रीजन डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। बिल्कुल सही बेटा। And the roads were connecting by the terrace farming. बाय द Ma'am, terrace farmings. टेरेस फार्मिंग मतलब Ma'am, means the terrace were cut it down and अच्छा, गॉट इट, जो ठीक है, हाँ, वो एक्चुअली दीज पीपल दे हेल्प इन मेकिंग दीज रोड्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, now when we talk of the construction cost, आप देखो रोड्स वैसे तो हम हर जगह बना पाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हिल्स पे रोड बनाने का खर्चा जो होता है वो ज्यादा होता है, बट
ये है कि बन जाते हैं. इट इज नॉट impossible, it is possible, but then the cost goes little high. ये जब हम ड्रॉबैक्स लिखेंगे कि रोडवेज और रेलवेज को जब हम कंपेयर करेंगे, अभी तो हम केवल रोडवेज कर रहे हैं, जब हम कंपेयर करेंगे, आप देखो हिल्स में भी इजीली रोड बनाई जा सकती है उन एरियाज को प्लेन करके, काट के, ठीक है, स्लोप्स को काट के प्लेन किया जाता है, जो बहुत ज्यादा अनइवन टेराइन्स होती है उनको जो है स्मूथ किया जाता है, सो दैट रोड्स कुड बी कंस्ट्रक्टेड. राइट क्लास? Remote areas. Yes, ma'am. Remote areas. Yes, ma'am. Can anyone of you tell what are remote areas? Ma'am, rural areas. Ma'am, Rural areas are called as रूरल एरिया Rural areas. जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना हो. हाँ, और वो प्लेसेस जो कि शहर से बहुत बहुत दूर बने होते हैं, ठीक है, कंट्री साइड कह लो या आउटस्कर्ट्स कह लो, ठीक है, Yes, ma'am. राइट राइट, ओके. चलिए, अगर हम देखते हैं तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो आपको पता है 7 स्टेट्स वाला जो है, 7 सिस्टर स्टेट जिसको हम कहते हैं, बेटा वो जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा, उसकी जो टेराइन है बहुत अनइवन है. स्पेशली अगर आप अरुणाचल प्रदेश का रीजन देखते हो तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, यहाँ पे रोडवेज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है. सॉरी, यहाँ पे हमारे रोडवेज हैं तो, पर अभी भी जो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवेज यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाए हैं. यहाँ पे कनेक्टिविटी या तो एयरवेज के थ्रू है या फिर आपका रोडवेज के थ्रू है, ठीक है. और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे रोड्स को बनाने की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है. Yes, ma'am. चलिए, अब अगर हम आते हैं रेलवेज पे, रेलवेज आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल me, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री. आपको पता है हमारे कंट्री का जो रेलवे सेक्टर है उसने कई लाखों लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, मतलब इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर, ऐसा समझ लो आप, ठीक है. Ma'am, जी बेटा आयुष. Yes, ma'am. ma'am, what is the difference between expressways and highways? ओके, पहले हम आप ही से पूछते हैं ये चीज. Anyone ma'am, else in the I class? think, ma'am, I think expressways has more lines than highway. Ma'am, highway have 1-2 line, expressway have 3, 4, 5, 6 lines of traveling. हाँ, अगर आप देखो तो ये लेन्स जो होती है ना, ये एक्सप्रेस हाईवेज जो होते हैं 6 लेन्स होते हैं या 8 लेन्स होते हैं. Yes, ma'am. हाईवेज जो है ये आपके 2 लेन्स होते हैं, 1, 2. ठीक है, ठीक है. और एक्सप्रेस वेज जो है यहाँ पे ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने पढ़ा होगा. डू यू रिमेम्बर अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ये हमने ज्योग्राफी में क्लास 8 में बताया था आप लोग की क्लास में, Yes, ma'am. है ना. हाँ, तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, ये एक्सप्रेस वेज दे कम अंडर दिस स्कीम. गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो बनाया गया जिसमें मेजर और इंपॉर्टेंट सिटीज को की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है. जैसे आपका आगरा एक्सप्रेस वे है, आप देखो आगरा एक्सप्रेस वे बनने की वजह से डिस्टेंस कितना कम हो गया है, Yes, ma'am. है ना. Ma'am, यस बेटा, ma'am, और मैम GT रोड्स मैम वो किसके अंडर आते हैं? ये आपके हाईवेज है ना. Okay, ma'am. ठीक है. Ma'am, generally on expressways, the speed limit for trucks is a little bit more. हाँ, एक्सप्रेस वेज में आप हाई स्पीड में चलाते हो ना, 120, 100 ऐसे चलती है. आपके जो हाईवेज वगैरह होते हैं वहां पे स्पीड लिमिट होती है. आपको एक Excuse me, particular- ma'am. हाँ जी अग्रिम. मैम, एक्सप्रेसवे का ये भी तो काम होता है, जैसे कि अगर कोई बड़ा जर्नी पे जा रहा है, तो मतलब लंबी जर्नी पे जा रहा है, तो हाँ. बीच के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स स्किप करके और स्पीड से पहुंचाता है डायरेक्ट वहीं पे, ये काम भी तो होता है. एक्सप्रेस, वही तो हमने बोला कि एक्सप्रेस वेज जो है वो डिस्टेंस को शॉर्ट करता है, इन द सेंस कि वो एक ऐसा रूट निकालता है जिसमें कि आपको छोटे छोटे स्टेशन आपको ना पड़े. जैसे जो हाईवेज है ना, हाईवेज तो जो आपका जो हाईवेज होते हैं वो स्टेट को कनेक्ट, स्टेट हाईवेज को कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवेज, है ना. पर ये जो एक्सप्रेस वेज है ये उन रूट्स को कनेक्ट करते हैं, उन सिटीज को कनेक्ट करते हैं जो कि मेट्रो सिटीज कहलाती हैं, या जो डेवलप्ड सिटीज हैं हमारे कंट्री की, उनमें कनेक्टिविटी बिठाती है ये, ताकि लोगों का डिस्टेंस कम हो जाए टू ट्रेवल टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. तभी हमने आपको आगरा एक्सप्रेस हाईवे का एग्जाम्पल दिया ना. आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद आप देखो उसका डिस्टेंस कितना कम हो गया है. दिल्ली से पहले अगर आपको आगरा जाना होता तो आपको बहुत घंटे लगते थे,
पर अब वो जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है, तो आपकी जर्नी ऑफ आवर्स ऑफ जर्नी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है, ठीक है। तो Yes, ma'am, north east वो में गली है। मोहल्लों से नहीं, हाँ वो ये जो एक्सप्रेस वे से गली मोहल्लों से नहीं निकलते हैं, ये आपको बाईपास होके सिटी से बाईपास होके निकलते हैं, ठीक है। Ma'am, from the outer side of the cities. हाँ जी, फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, राइट। यस मैम। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए चलो, अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो पैसेंजर्स और फ्राइट, मतलब पैसेंजर्स और उनके गुड्स को ले जाने के लिए रेलवेज इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल मोड। अगर हम ये बोले कि जो रेलवेज हैं वो रोडवेज के कंपैरिजन में ज्यादा सामान लेके जा सकती है एक समय में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो जो रेलवेज होती हैं उनके थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। तो रोडवेज से जब हम Yes, कंपेयर ma'am. करते हैं, हाँ रोडवेज से जब हम कंपेयर करते हैं इनको रेलवेज को, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेलवेज आर बेटर देन द रोडवेज इन कैरिंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम। आप बोथ पैसेंजर्स एज वेल एज द गुड्स कैन ट्रैवल टुगेदर, राइट। रोडवेज में ऐसा नहीं होता है, आप गाड़ी में या तो अपने आप को ले जाओ या फिर सामान भर के ले जाओ, दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो इट इज ओके, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस यू कैन नॉट पुट ऑल द लगेज एंड एवरीथिंग इन वन व्हीकल एंड ट्रैवल ऑल टुगेदर। आपने देखा होगा जब ट्रांसफर केसेस होते हैं तो गाड़ियों का सामान, जो सामान होता है, घर का टोटल सामान जो होता है वो अलग से ट्रक में भेजा जाता है, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अलग से जो व्हीकल है उसमें जाते हैं, ठीक है, या फिर दे ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है। इतना ठीक है? यस मैम। हाँ जी बोलो। एंड मैम रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम और मैम ऐसे जो रिसोर्सेस होते हैं वो रेलवे से ही ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो रेलवेज होता है ना, इट कैरीज heavy and bulky goods. Yes ma'am, Yes, coal, ma'am, even ma'am, petroleum or army diesel. goods also, ma'am, army, navy and aircraft goods also, Yes, ma'am. ma'am. अभी हम आपको पहले इसी का एग्जांपल बताते हैं, जो आर्मी नेवी गुड्स आप बता रहे हो। जानते हैं जब यूनिट्स जब कोई एक रेजिमेंट ट्रांसफर होती है या जब एक रेजिमेंट किसी जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो पूरी रेजिमेंट जो है एक ट्रेन पूरी बुक कराती है, उनकी अपनी पर्सनल हो जाती है वो ट्रेन, मतलब उस ट्रेन में केवल फौजी लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, उनका सामान होता है, तो मतलब एक बार में एक पूरी ट्रेन को बुक करा के उसमें पूरी की पूरी रेजिमेंट एक साथ मूव कर जाती है। तो रेलवेज का ये बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है, राइट? Ma'am, it's a myth that some weapons and missiles are ma'am moving with railway and nobody knows where it is, ma'am. Yes, they are also transported through the railways. अगर आप ये देखो तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेलवेज आर बेटर देन द रोडवेज, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। दूसरा जो डेवलपमेंट And ma'am, they are quite comfortable also. they are quite comfortable, that is why people prefer going through the railways, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलो हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस रेलवेज आर ऑलवेज बेटर ऑप्शंस, राइट। उसके बाद अगर आप ये देखो जो रेलवेज होती है ये बहुत ज्यादा मल्टीफेरस एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। दूसरा रेलवेज के थ्रू जो हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर हमें बल्कि और हेवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम कहाँ तक ट्रक्स में भेजेंगे, हमें पता है कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ गुड जो हमें जो ट्रांसपोर्ट करना है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो हम रेलवेज ही प्रेफर करेंगे उसके लिए, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। फाइन। Okay, we have very less time left, so let us do one thing. Next period we have the class, so we'll continue in that next class only, right class? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Fine, chaliye. Thank you class, thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. See you in the next class. Try to be present, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. thank you बच्चा। Thank you, ma'am.